So today we are discussing miscellaneous questions based on permutation combinations, including previous year JEE Mains as well as advanced questions also, and some other questions also. Taking first question from previous year JEE Advanced 2008 question from permutation combination. Consider all possible arrangements of word when one word is given to you. Consider all possible arrangements of that word, and then there are 4 questions based on that. मैं इस column form में था. I am giving you 2 questions first. Then we'll take 2 more questions. First 2 questions are जो आप attempt करेंगे. The number of permutations. The first question is the number of permutations containing the word ENDEA. The number of permutations containing the word ENDEA. And the second one, number of permutations in which E occurs in first and last position. These 2 questions आप attempt करें पहले. So consider all possible arrangements of that word is given to you. और उसने कहा है consider all possible arrangement of that word. And the first question is the number of permutations containing the word this word. कितने arrangement possible हैं जो इस word को contain किए हुए हैं out of that word only. Definitely. जहां तक इस वर्ड की बात आती है ENDEA, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमें इसमें किसी की पोजीशन चेंज नहीं करना है. दैट वर्ड इज देयर. नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कंटेनिंग दैट वर्ड, ये वर्ड एज इट इज इंटैक्ट रहना है. देखिएगा ENDEA NOEL. सो डेफिनेटली इसको एक यूनिट कंसिडर कर लेंगे हम. Containing the word, that word is been contained there. तो ये word है as it is है. इसमें कुछ भी arrangement नहीं होना है. इसको एक ही यूनिट कंसिडर करना है. Containing the word, ये word as it is रहेगा इस पूरे arrangement में. So 1 alphabet, second, third, fourth, and this is the 5th one. इसे आप एक यूनिट कंसिडर कर रहे हैं. कुछ भी arrangement नहीं. 1 2 3 4 5 and 5 distinct alphabets, 5 distinct letters, 5 distinct units can be arranged on 5 places by 5p 5 ways. That's nothing but 5 factorial. Just verify करिए, check करिए, आपने भी यही किया था. The second one, ये attempt. The second one, E occurs in first and last position. E occurs in first and last position. How many alphabets are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. In all 9 alphabets are there. E की position first और 9th पे fix है. E occurs at first and 9th place. ठीक, मतलब E तो इधर रहने वाला. Actually यहाँ पर there are E and this E. These 3 E's are available there. ठीक है. आपसे कहा गया कि फर्स्ट और 9th पोजीशन पे तो E फिक्स रहेगा. E occurs in first and last position. 3 आइडेंटिकल E's हैं तो उसमें कोई सिलेक्शन की बात नहीं होगी. यहाँ पर E की पोजीशन फिक्स है फर्स्ट और 9th के ऊपर. E की पोजीशन अगर फिक्स है तो देन रिमेनिंग अल्फाबेट्स, 2 E को तो आपने फिक्स कर दिया फर्स्ट पोजीशन और 9th पोजीशन पर. इसे फर्स्ट कहा तो ये 9th या इसे फर्स्ट कहा तो ये 9th. इन 2 पोजीशन पे तो E फिक्स है. इन बिटवीन 1 2 3 4 5 6 and 7 आप देखेंगे इन बिटवीन दीज 2 E's क्या क्या आ सकता है? N D E A N O L 1 2 3 4 5 6 7. these 7 alphabets. 2 तो आपने E फिक्स कर दिया. ठीक. now these 7 alphabets can be arranged on those 7 places by 7 factorial ways or by 7p7 ways. right?
कैन बी अरेंज्ड इन 7p7 वेज और बाय 7 फैक्टोरियल वेज, लेकिन 7 फैक्टोरियल लिखते समय आप जरूर ध्यान रखिएगा n इज कमिंग 2 टाइम्स, e तो फिक्स्ड है फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन पे, n इज कमिंग 2 टाइम्स, बाकी सब d e a o l सिंगल वन, 7 फैक्टोरियल डिवाइड 2 फैक्टोरियल, दैट वुड बी द रिजल्ट। सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। एंड जो रिक्वायर्ड रिजल्ट जिस फॉर्म में हो, कॉलम मैचिंग का सवाल था, मार्क कर दीजिएगा। दैट दीज वर द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन जेईई एडवांस 2008। Two more questions based on the same passage. The number of permutations in which none of letters D, L, N occurs, none of the permutations in which, the number of permutations in which none of the letters D, L, N occurs in last 5 positions. पहले आप अटेम्प्ट कर रहे हैं इनको। That was the third question. The fourth one was the number of permutations in which the letters A, E, O occur only in odd positions. These 2 more questions based on the same passage. So none of the letters D, L, N occurs in last 5 positions. Last 5 position. In all there were 9 अल्फाबेट्स जो हमने काउंट किए थे, ये 9 अल्फाबेट्स वाला वर्ड है जो गिवन है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभी काउंट किया हमने। एंड ये कहता है कि नन ऑफ द लेटर्स डी एल एन ऑकर्स इन लास्ट 5 पोजीशंस। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट 5 पोजीशंस 1 2 3 4 5 लास्ट 5 पोजीशंस। None of the letters DLN, कितने DLN है चेक करिए, DLN, that means none of the letters comes in those last 5 positions। इसका मतलब ये first 4 positions में आ सकते हैं, last 5 positions में नहीं आ सकते। कितने हैं DLN जरा देखिएगा, D is coming 1 time, L is coming 1 time, D L, N is coming D L N, N is coming 2 times, okay। And remaining 5 alphabets are, 4 को सेपरेट किया, E, then again E, A, O, E, E, and अच्छा again E, 3 times E is coming, A and O, ठीक है। DLN के बारे में कहा गया है कि none of the letters DLN occurs in last 5 positions। लास्ट 5 पोजिशंस पे नहीं आ सकते, मतलब ये DLN को आना है फर्स्ट 4 पोजिशंस के ऊपर, फिक्स है। और लास्ट 5 पोजिशन पे जो आ सकते हैं, और फिर ये 4 ही अल्फाबेट्स हैं, DLNN, और लास्ट 5 पोजिशंस पे जिन्हें आना है वो EEAO, ठीक है। इन्हीं का अरेंजमेंट करेंगे। These 4 अल्फाबेट्स कैन बी प्लेस्ड ऑन these 4 places by 4 factorial ways, divided by n is coming 2 times, that is 2 factorial, into लास्ट 5 प्लेसेस का अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल वे से आपने अरेंज किया, बट एट द सेम टाइम टेकिंग केयर दैट ई इज कमिंग 3 टाइम्स, इजीली यू कैन कैलकुलेट दैट। दैट वुड बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट। चेक करिए आप लोग, अभी रिजल्ट यही है, सिंपल क्वेश्चन बट क्वेश्चन इन जेईई एडवांस्ड। The last one, AEO occurs only in odd positions, ठीक है। फिर से 9 positions बना लेते हैं, 3 4 5
7, 8, 9. Odd positions. 1, 3, 5, 7, 9. These are the odd positions. और वो कहता है ए ई ओ ऑकर ओनली इन ऑड पोजिशंस. ए ई ओ केवल इन ऑड पोजिशंस, मतलब इन 5 पोजिशंस पे आ सकते हैं. ए ई ओ कितने हैं? ई इज कमिंग 3 टाइम्स, ए इज कमिंग 1 टाइम एंड ओ इज कमिंग 1 टाइम्स. ओके, ये 5 पोजिशंस के लिए 5 लेटर्स या 5 अल्फाबेट्स फिक्स हो गए. देन एन इज कमिंग 2 टाइम्स, डी एल. काफी ठीक है. ऑड पोजिशंस, 5 ऑड पोजिशंस एंड 5 अल्फाबेट्स, ट्रिपल ई ए ओ. 5 factorial divide by 3 factorial. That is the arrangement of these 5 alphabets on these 5 odd locations. And 2. ये remaining चारों का arrangement 4 factorial divide by 2 factorial. Result इन दोनों में सेम ही आ रहा है. Result comes in same in third as well as fourth. चेक करिए. Now please note down the question. Second question. It's again advanced question of 2012. Easy one, but the total number of ways. Find the total number of ways in which 5 balls of different colors. 5 balls of different colors can be distributed. 5 balls of different colors can be distributed among 3 persons. Among 3 persons, so that each person gets at least 1 ball. 5 balls of different colors can be distributed amongst 3 persons so that each person gets at least 1 ball. पहले अटेम्प्ट करेंगे आप लोग. 5 balls of different colors, distribution in 3 persons. 5 balls डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको उनको. इन 3 persons. Subject to the condition. कंडीशन यहां पर ये है कि so that one person gets at least 1 ball. Each person gets at least 1 ball. हर बंदे को एक बॉल तो मिलना ही चाहिए. कैसे देखना होंगे? One, 1 and 3. That could be one of the way. First person 1 ball, second person 1 ball, third person 3 balls. Yes, possible, very much possible. At the same time आप समझते हैं इनका आपस में भी अरेंजमेंट होगा. One more option could be there. 2 to 1. Right? And their arrangement also. बस इतना ही है. कैसे लिखोगे आप? फर्स्ट इट इज 5C1. फर्स्ट पर्सन को मिली 5C1 इनटू. नाउ रिमेनिंग बॉल्स 4 बॉल्स. रिमेनिंग बॉल्स 4 बॉल्स 4C1 इनटू finally 3 remaining and 3 can be distributed in 3C3 ways. So 5C1 into 4C1 into 3C3 into इन तीनों का आपस में अरेंजमेंट 1 2 3 factorial, but at the same time 2 of them are having the equal number of balls, so divide करना होगा आपको इसको. Divide by 2 factorial, so it will become here first case का result 5 into 4 into 1 into 3, that is coming as 60. एक और अरेंजमेंट जो पॉसिबल है, that is 2 to 1, which is 5C2 into 3C2 into 1C1. 5C2 remaining 3 balls 3C2 into 1C1 into again arrangement in 3 factorial ways. Divide by 2 of them are getting the equal number of balls, so divide by 2 factorial. arrangement करना मत भूलिएगा.
5C2 that will become 10 into 3C2 that is equals to 3C1 that is 3 into 1 into 3 90. These are the two possible arrangement. इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा. 90 plus 60 is becoming 150. 150 is the total result. Previous year JEE Advanced 2016 recent one. Please note करिएगा question. A debate club consists of 6 girls and 4 boys. A debate club consists of 6 girls and 4 boys. A team of 4 members is to be selected from this club. A team of 4 members is to be selected from this club, including the selection of captain also, including the selection of captain from amongst 4 members only. A team of 4 members is to be selected from these club, including the selection of captain from amongst 4 members for the team. If the team has to include at most one boy, if team has to include at most one boy, the number of ways of selecting a team, the number of ways of selecting a team. करिए attempt please. देखिएगा. और डिबेट क्लब की जब बात करी तो एक डिबेट क्लब में जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज. ये तो मेंबर्स हैं इसके. दीज आर द मेंबर्स. ओके, टीम बनना है टीम ऑफ 4. टीम ऑफ 4 बनना है. ठीक है, टीम ऑफ 4 बनना है इन्हीं 10 लोगों में से, इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ कैप्टन ऑल्सो. 4 में से एक कैप्टन भी बनेगा. ओके, for the team. If the team has to include at most one boy. At most one boy. काफी सवाल किए आपने क्लास में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. At most one boy, the number of ways of selecting a team. At most one boy. When I say at most one boy, at most one boy, देखिएगा 6 girls 4 boys ये मेंबर्स हैं. टीम बनना है 4 लोगों की विथ कंडीशन एट मोस्ट 1 बॉय. 2 केसेस होंगे. एट मोस्ट 1 बॉय दैट मीन्स 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स, ये टीम. और दूसरा केस एक भी बॉय नहीं है, मतलब 4 गर्ल्स, ये दूसरा केस. व्हेन आई से 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स, 1 बॉय, पहले तो हम जरा सिलेक्शन कर लें और फिर उसमें से टीम का कैप्टन भी चुनना है हमें. सो 1 बॉय 4C1 इंटू गर्ल्स 6C3. 1 बॉय 3 गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ 4C1 इंटू 6C3 वेज से, इंटू ये जो 4 लोग आपने सिलेक्ट किए हैं, इन चारों में से ही कोई एक कैप्टन होगा. कैन बी सिलेक्टेड इन 4 वेज एक्चुअली. चारों में कोई भी कैप्टन हो सकता है. 4C1 वेज से आप कैप्टन सिलेक्ट किया, ये भी ध्यान रखेंगे. प्लस द सेकंड केस, चारों गर्ल्स हैं, बॉयज एक भी नहीं है, 4C0 एक भी लड़के का सिलेक्शन नहीं, इनटू चारों गर्ल्स 6C4 इनटू कैप्टन. तो यहां पे भी लगना है 4C1. दैट इज नथिंग बट द रिजल्ट. यही रिजल्ट होगा. 4C1 इज 4, 4C1 4, 4C0 1, 4C1 4. You can calculate 6C4 and 6C3 easily. That is going to be the total result. Just calculate करिए, बताइए. Again, a recent year question only. In the year 2015, it
It was asked. Note down the question, please. Let n be the number of ways. Let n be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue. 5 boys and 5 girls can stand in a queue such that, in such a way that all the girls stand consecutively in the queue. Let n be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue such that, in such a way that all the girls stand consecutively in the queue. Second, m be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that exactly 4 girls stand consecutively. M be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue. सौरभ भाई समझ में आ रहा है? Can stand in a queue in such a way that exactly 4 girls stand consecutively. ठीक? और पूछा गया है आपसे find out the ratio m by n. Please attempt. चलिए, we'll discuss that. एक बात बहुत जरूरी है कि जो भी क्वेश्चन डिस्कशन में आप डिस्कशन देखने से पहले, जो वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, डिस्कशन देखने से पहले आप पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें. So n be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that all the girls stand consecutively in the queue. Fine. n की बात करें तो 5 boys, 5 girls, और ये कहता है all the girls stand consecutively in the group, in the queue. 1, 2, 3. Easily you can calculate that. ये 5 girls हैं, ये साथ में रहेंगी consecutively. ठीक. And remaining 4, these are the 5 boys. इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बात करें तो है ना, ऑल गर्ल्स आर कंसेक्यूटिवली देयर इन द क्यू. सो जब n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 बॉयज. एक यूनिट कंसिडर करते 6 फैक्टोरियल वे से आपने अरेंज किया. ठीक है, 6 फैक्टोरियल वे से आप कर रहे हैं क्या अटेम्प्ट पहले? चले करें प्लीज. तो किया सब लोगों ने अटेम्प्ट? ओके. तो सारी गर्ल्स कंसेक्यूटिव हैं, साथ में हैं. 5 गर्ल्स को एक साथ रखा, यूनिट कंसिडर किया 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस वन इज 6. कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल वेज इनटू डेफिनेटली पांचों गर्ल्स का आपस में अरेंजमेंट कैन बी डन इन 6 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल वेज. ठीक है, n इजीली कैलकुलेट किया. m के केस में m be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that exactly 4 girls stand consecutively. Exactly 4 girls. 5 girls are there. Exactly 4 girls stand consecutively. इसका मतलब एक बात तो ये हो गई आपको, जब दूसरी n ये आपने कैलकुलेट किया, m कैलकुलेट करने वाले हैं आप, तो m के लिए 4 girls would be there, जो एक यूनिट लेंगे हम. 4 गर्ल्स स्टैंड इन कंसेक्यूटिव मैनर, तो 4 गर्ल्स का एक ग्रुप और एक और जो गर्ल बचेगी गैप मेथड. B1, B2, B3, B4, B5. These are the 5 boys. ठीक, 4 गर्ल्स का एक ग्रुप. लेट से ये यहां पे भी एक बात समझ लीजिएगा, 4 गर्ल्स को सिलेक्ट करना होगा आपको. कौन सी 4? 5C4. Let's say these are the 4 girls and this one is the 5th one. ठीक. How many gaps are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gaps are there. और इन 6 gaps के ऊपर
इन सिक्स गैप्स पर आप इन दो ग्रुप्स को प्लेस कर सकते हैं। 5C4 बेस से तो सिलेक्शन हुआ है केवल ये 4 गर्ल्स का जो इस ग्रुप में रहना है। तो 6 गैप्स और ये 2 ग्रुप्स, एक ये ग्रुप और एक ये ग्रुप, विच इज अ सिंगल इंडिपेंडेंट गर्ल, है ना, सिंगल 6P2 वे से आपने इन्हें भी सिलेक्ट करके अरेंज कर दिया। व्हेन आई से 6P2, ये 6 प्लेसेस हैं जिन 6 प्लेसेस पे इन 2 ग्रुप्स को रखे जा सकते हैं, रखा एज वेल एज 6P2 एज वेल एज उनका आपस में अरेंजमेंट, तो दैट इज 6P2। 5C4 वे से तो आपने गर्ल्स का सिलेक्शन किया। 6 गैप्स हैं, 6 गैप्स के ऊपर इन दोनों ग्रुप्स को रखना, ठीक है, इनटू 5 बॉयज का आपस में अरेंजमेंट होने वाला, दैट इज 5 फैक्टोरियल, दैट इज ऑलवेज देयर। एट द सेम टाइम ये चारों गर्ल्स भी आपस में अरेंज हो सकती हैं। बोले सर ये कर दिया आपने, नहीं, ये तो उन ग्रुप्स का था 1 और 2 का, चारों गर्ल्स का भी आपस में अरेंजमेंट हो सकता है, दैट इज बाय 4 फैक्टोरियल, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक, जस्ट कैलकुलेट दैट, you have to calculate what, that ratio m is to n, this is n, 5C4 is equals to 5C1 is equals to 5 into 5 factorial into 4 factorial into 6 factorial divided by 4 factorial, right? We want m by n, 5 into 5 factorial into 6 factorial divided by 6 factorial into 5 factorial is becoming 5. That result is what? That result is 5. Please note down that. आप लोग अभी रिजल्ट था ये? Anyone who are getting that? कितने लोग हैं जिनका रिजल्ट आया 5? काफी सारे लोगों ने छोड़ दिया ये 5C4। 5 में से 4 गर्ल्स को सिलेक्ट भी तो करना होगा जिनको आपने एक ग्रुप बनाना है। चेक करिए, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखिएगा, सोच समझ के करिएगा उसको। 2014 जेई, लेट n1 लेस देन n2 लेस देन n3 less than n4 less than n5 be positive integers, such that n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus n5 is equals to 20, n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus n5 equals to 20. Then the number of such distinct arrangements, n1 less than n2 less than n3 less than n4 less than n5 be positive integers such that n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus n5 equals to 20. That summation of those 5 positive integers must be equals to 20. With the condition, that condition is there in front of you, then the number of such distinct arrangements, how many distinct arrangements are there? बहुत सोच समझ के ट्राई करिएगा, एक भी अरेंजमेंट छूटा तो गड़बड़ हो जाएगा। How many arrangements are there? पहले अटेम्प्ट करेंगे, then only see the discussion. So n1 less than n2 less than n3 less than n4 less than n5 पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की गई है। समेशन इज 20। करें स्टार्ट। So just look, the first one n1 कंडीशन हमारे ध्यान में है, उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। 1 n2 इज ग्रेटर देन, जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो ये स्टार्ट करोगे आप पॉजिटिव इंटीजर्स बिगिनिंग विथ 1, 1 2 3 4, n2 n1 से बड़ा है, n3 n2 से बड़ा है, n4 n3 से बड़ा है, राइट। समेशन इज 20, 4 plus 3 7 plus 3 10
So n5 must be equals to, now this, actually it is nothing but this is n1, this is n2, this is n3, this is n4 and this is n5. It's 10. That is going to be one case. अरेंजमेंट मत करिएगा, एक ही केस होने वाला है. 1 2 3 4 10. ठीक. सेकेंड वन अगेन 1 2 3, जो बहुत ऑब्वियस सी बातें दिखता है. 1 2 3 4 को हमने 5 किया. हियर इट इज 9. आसानी से सोच पाएंगे, ठीक है ना. तो 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10 प्लस 10 20. तो ठीक है, 4 को 5, 10 को 9, कंडीशन इज सेटिस्फाइड. 1 2 3 6 and 8, that is also fine, right? बोले सर अब 4 5 6, बोले सर अब 7 कर दीजिए. 1 2 3 7, बट इफ इट इज 7 दिस मस्ट ऑल्सो बी 7. और अगर ये 7 7 तो ये कंडीशन को वायोलेशन हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है. दैट्स नॉट करेक्ट. 1 2 3 को फिक्स रखते हुए, n1 n2 n3 1 2 3 को फिक्स रखते हुए, दीज वेर द 3 पॉसिबल केसेस जो हमने बनाए. 7 7 इज नॉट पॉसिबल. ठीक. अब चेंज करते हैं. 1 2 इंस्टेड ऑफ दिस 3 we take here 4. We are having in our mind that condition is always there. 1 2 4. If it is 1 2 4, ठीक, n1 n2 n3, I take it as 5 is becoming, the last one would become 5 plus 4 9 plus 1 10 plus 2 12. That is perfect. At the same time 1 2 4, this is 6, this is 7, is also perfect. नेक्स्ट वन इज नॉट पॉसिबल. द रीजन इज यहां पे 7 होगा तो पॉसिबल नहीं है. फिर उस केस में 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 प्लस 7 14, 6 गड़बड़ है, बराबर भी नहीं हो सकता. n4 मस्ट बी लेस देन n5, राइट? सो हमने यहां पे फर्स्ट 3 केसेस यहां पे 1 2 3 फिक्स हुए. नेक्स्ट 2 केसेस, राइट? स्टेप बाय स्टेप केसेस बना रहे हैं हम. तो 1 आई टेक हियर 3, 1 2 वाले भी हो गए, 1 3 पे आ जाते हैं. इफ आई टेक 1 3, 3 से ग्रेटर होना चाहिए 4 5. चेक करें जरा. 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 and 7 20. That is also perfect. अगर मैं यहां पे 6 रखता हूं, 1 3 4 6, if I put 6 there, तो 6 plus 4 10 plus 4 14, लास्ट प्लेस या n4 must also be 6. 6 और 6 बराबर नहीं हो पाएंगे. That is not possible. तो 1 3 4 5 7, यहां पे दूसरा कुछ भी 6 नहीं आ सकता और कुछ भी नहीं आ सकता. सिंगल 1 के साथ वाले भी हमने केसेस बनाए. एक ही पॉसिबल हो रहा है यहां पर. बोले सर और कुछ रख के देख लेते हैं, इसको बढ़ा लें, इसको बढ़ा लें, तब तो आगे पहुंच ही नहीं पाओगे. इफ यू मेक इट 4, चलिए देख लीजिए. जरूर अरेंजमेंट तो करके देखना होगा. इफ यू मेक इट 4 देयर, 1 2 हुआ, 1 3 1 3. इफ यू मेक इट 4, 1 3 पे तो एक केस पॉसिबल हुआ. 1 4, लेट्स से 5 6 7, यही हो सकता है. 6 plus 4 10 plus 6 16, how it can be 7? No, it's not at all possible. Possible नहीं है. यही एक सिंगल केस. अब क्या करना? Let's check for 2 also. While keeping n1 equals to 2, 2 रखते हैं n1 को और चेक करें जरा. फर्स्ट जो दिमाग में आना चाहिए 2 3 4 5. Is there any possibility? 5 plus 4 9 plus 3 12 plus 12 plus 2 14 6. Yes, it is possible, right? If I put 2 there, आप कुछ भी चेंज करना चाहोगे, now it is not possible. If you make it 6, cannot be less than that.
बराबर भी नहीं हो सकता तो लेस होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और 2 3 के साथ में दैट इज द ओनली वन पॉसिबिलिटी देयर, और कुछ पॉसिबल आएगा नहीं 2 के साथ में। एंड इनफैक्ट यू टेक 3 देयर, 2 के साथ में दिस इज द पॉसिबल केस। एंड डेफिनेटली आप ऑब्जर्व कर रहे हो 2 3 4 5 6 2 के साथ में अगर ये पॉसिबल केस है, फाइनल केस होगा। द रीजन इज इनका समेशन अगर 20 हो रहा है, इफ यू मेक इट 3 देयर और 3 4 5 6 7 करते हैं तो इट विल बिकम एक्सीड 20 विल बिकम 21। So number of cases, fine. 1 2 3 4 5 6, this one is 7। बड़ा अच्छा सवाल। 7 distinct arrangements are possible, लेकिन ये करके देखने वाली बात है, मजा आता है। 7 distinct arrangements are possible, please note down that। JEE 2014 only, advanced, yes। Please note down the question. Let n greater than equals to 2, n greater than equals to 2 be an integer value. Take n distinct points on a circle. Take n distinct points on a circle and join each pair of points by a line segment. By a line segment, each pair of points by a line segment, ठीक है। n points are there. Color the line segment joining every pair of adjacent points by blue। सोच समझ के करिएगा इसको। Color the line segment joining every pair of adjacent points by blue and rest by red। राजन समझ में आ रहा है? पहले स्टीलिंग से सुनना लिखना है। Color the line segment joining every pair of adjacent points by blue and rest by red. If the number of red and blue line segments are equal, if number of red and blue line segments are equal, find out the value of n. Find the value of n. ठीक से रीड करेंगे आप क्वेश्चन को, तभी आप सॉल्व करेंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। प्लीज डू इट। लेट्स सी नाउ। सर्कल एंड इट सेज take n distinct points on a circle, ठीक, and join each pair of points by a line segment, ठीक है। n points भी काम करते हैं, टेक A1 A2 A3 A4 A5 A6 समझाने के लिए बना रहा हूं मैं आपको। एंड लाइकवाइज अप टू AN, ठीक है। ये n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इससे प्रीवियस होगा जो AN-1, ठीक। n distinct points you have taken, and it says join each pair of points by a line segment। n points है, pair of points को join करना है। number of line segments कितने होंगे? number of line segments जो बनेंगे, those are going to be NC2। n points are there, n distinct points are there, and we want line segment, तो ठीक है। A1 A2 A1 A3 A1 A4, आप कॉम्बिनेशन जानते हैं, यू आर डायरेक्टली गोइंग टू राइट देयर NC2। तो NC2 आर द टोटल लाइन सेगमेंट्स पॉसिबल joining each pair of points, NC2। टोटल भी कहता है color the line segment joining every pair of adjacent points by blue and rest by red। every pair of adjacent points by blue, adjacent points को blue से करना है। अब यहाँ पे देखें हम कितने blue line बनने वाली है। and rest by red, rest by red मतलब NC2 में से उतना सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो उतनी लाइंस रेड हो जाएंगी।
एडजेसेंट पॉइंट्स है ना, एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट पॉइंट्स। एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट पॉइंट का क्या मतलब समझे? इफ आई टेक A1 तो A1 के साथ में A2 और A1 के साथ में AN, दैट इज द मीनिंग ऑफ एडजेसेंट ना। इफ यू टेक A2 तो A2 लोगे तो A2 के साथ में A1, बट दैट वुड बी रिपीटेड देयर, राइट? एन A3, ठीक। आप यहां ध्यान रखेंगे A1 के साथ में आ चुका है ये A1 AN, so it is actually going to be only A2 A3 only, क्योंकि A2 A1 तो आ ही गया। A3 के साथ में लेंगे तो A3 A4 and A3 A2, but A3 A2 that line segment is already there. Okay, so likewise when you take AN minus 1 के साथ में AN minus 2 और AN minus 1, AN ये उससे पहले वाले के साथ में आ जाएगा, और लास्ट में इट इज AN A1 और AN माइनस 1। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखते समझते, मैं लिख रहा हूं सब कुछ, आप इतना समझ पाएंगे कि जो नंबर ऑफ एडजेसेंट्स लाइन होंगी, दोज एडजेसेंट्स लाइंस आर नथिंग बट n ओनली। जस्ट कैलकुलेट दैट। एडजेसेंट लाइंस कितनी होने वाली है? n लाइंस, क्योंकि रिपीट होंगी ना सब, ये रिपीट हो जाएगा प्रीवियस वाले के साथ में। ये ऑलरेडी आ चुका है, ये प्रीवियस वाले के साथ में आ गया। आर यू गेटिंग दिस? ये प्रीवियस वाले के साथ में है, ठीक है। AN N minus 1 आ गया और AN A1 इधर आ गया। इन ऑल अगर आप देखेंगे यू आर गोइंग टू गेट n एडजेसेंट लाइन। प्लीज थोड़ा सोच समझ कर देखिए, इट इज गोइंग टू बी n। बोले सर फर्स्ट वाले में 2 थे, बाकी सब एक है, तो क्या हुआ? नहीं, तो फर्स्ट वाले में 2 हैं तो लास्ट वाले में फिर कुछ भी नहीं है उसके अकॉर्डिंग, सो इट इज n। ओके, एडजेसेंट लाइंस जो कि ब्लू पेंट की गई हैं, ब्लू कलर से हैं, n। तो रेड कितनी हुई? ठीक सवाल है। रेस्ट ऑफ द लाइंस का क्या मतलब? NC2 minus n। Then it says number of red and blue line segments are equal and you have to find out the value of n। दोनों इक्वल हैं तो क्या करेंगे आप? NC2 minus n is equals to n। NC2 equals to 2n। n factorial upon 2 factorial into n minus 2 factorial, it is equals to 2n there। n minus 1 by 2 is equals to 2n। n cannot be equals to 0, आप यहीं पे कैंसिल कर दीजिए। is becoming n minus 1 equals to 4, or you can say n equals to 5। result is what? n equals to 5। एक काम करिएगा, वैसे कभी ड्रॉ करके भी देख लेना, ठीक है? अच्छा सवाल है। n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल टेकन, इसीलिए मैंने बना के बताया आपको n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ये n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एडजस्ट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, तो ठीक है, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स तो आप जान ही सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स तो आप A1 A2 A1 A3 A1 A4 डायरेक्टली, जब आप कॉम्बिनेशन जानते हैं तो आप डायरेक्टली लिखेंगे NC2। n पॉइंट्स हैं और कितने लाइन सेगमेंट होंगे, तो NC2 लाइन सेगमेंट्स होंगे। एडजेसेंट की बात आ गई, जब आपने ड्रॉ करके देखा है तो आपने इजीली समझ भी लिया उसको। A1 A2 तो A1 AN, A2 के साथ में A3 आएगा केवल क्योंकि A2 A1 ऑलरेडी आ चुका है। A1 के साथ जरूर आपको 2 दिख रहे हैं, लेकिन उसका हुआ क्या इंपैक्ट? ये हुआ कि लास्ट वन AN के साथ में कुछ भी नहीं है फिर। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस। नंबर ऑफ एडजेसेंट लाइंस आर n। यार वैसे भी एक छोटी सी बात थी कि इफ यू टेक, आप एडजेसेंट लाइन की बात कर रहे हैं, तो अगर आप 6 पॉइंट्स लेके देखते हैं या 5 पॉइंट्स जो रिजल्ट आया वो लेके देखेंगे आप, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा वो जो सर्कल के अंदर बन रहा है? अगर मैं रेगुलर
पॉलीगन बना के देखूं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 5 पॉइंट्स का एक पेंटागन बनेगा। तो एडजेसेंट लाइंस कितनी होगी काउंट नहीं कर सकते आप। 5 पॉइंट्स आर देयर, 5 पॉइंट्स हैं तो उसमें एडजेसेंट लाइन तो 5 ही होने वाली है, तो इट इज फाइन, इट इज n। वो ब्लू से पेंट किया आपने, ब्लू कलर किया उसको। रिमेनिंग लाइंस nc2 माइनस n रेड हो गई। इक्वेट किया दोनों को, इजीली कैलकुलेट किया इंटीजर वैल्यू, दैट इंटीजर वैल्यू इज कमिंग एज 5। अच्छा सवाल है, नोट करिए। JEE 2014 क्वेश्चन प्लीज नोट करिएगा। Based on the derangement type of question, now we have discussed the derangement in the final class of permutation combination. Please go through that class once again. वो जरूर देखिएगा वो क्लास। 6 cards and 6 envelopes are numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6, and cards to be placed in envelopes. 6 cards and 6 envelopes are numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6, and cards to be placed in envelopes, so that each envelope contains exactly one card, and no card is placed in the envelope bearing the same number. ठीक है, and the cards to be placed in the envelopes so that each envelope contains, हर envelope में एक कार्ड रहेगा, ठीक है, exactly one card, and no card is to be placed in the envelope bearing the same number. Derangement में ऐसा होता है, no card is placed in the envelope bearing the same number, and moreover the card 1 is always placed in envelope number 2. Moreover, card 1 is always placed in envelope number 2. The number of ways in which it can be done, card 1 has to be kept in number 2. देखो अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहले कर लीजिए। जो फैक्ट हमने उस क्लास में डिरेंजमेंट से रिलेटेड क्लास में डिस्कस किया था, उसमें ये था कि कुछ रिजल्ट्स तो हमें तैयार होना चाहिए। व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट द डिरेंजमेंट का डायरेक्ट एक रिजल्ट है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला है कि n लेटर्स एंड n एनवेलप्स एंड डिरेंजमेंट ऑफ दैट। डिरेंजमेंट मतलब एक भी लेटर एक सही एनवेलप में नहीं जाना चाहिए। That can be done in the ways n factorial 1 upon 0 factorial minus 1 upon 1 factorial, ये दोनों टर्म तो वैसे भी कैंसिल हो जाती है, प्लस 1 by 2 factorial minus 1 by 3 factorial, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा like this। That's the formula for derangement। ये फॉर्मूला होता है डिरेंजमेंट का, ध्यान रखना होगा, बट एट द सेम टाइम इतना जरूर ध्यान रखिएगा आप, देयर आर सम रिजल्ट्स जो आपको याद रखना चाहिए। हमने सजेस्ट किया था 2 लेटर्स इन 2 एनवेलप्स, दोनों गलत एनवेलप में जाएं। इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन? 2 letters in 2 envelopes, that is only, there is only one way। 3 letters and 3 envelopes, 4 letters and 4 envelopes, 5 letters and 5 envelopes, 6 letters and 6 envelopes। ये सारे रिजल्ट्स आपको याद रखना है। कैन यू प्लीज कैलकुलेट दैट? याद आ रहा है आपको? एक बार जस्ट चेक कर लीजिए, अदरवाइज मैं आपको नोट करा देता हूं फिर से, सो दैट देन विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। So fine, 2 letters, 2 envelopes, both are in the incorrect envelopes, there is only one way। 3 letters, 3 envelopes, how many ways are there? 2 ways are there। 4 letters, 4 envelopes, फॉर्मूला तो ऑलरेडी है आपके पास में। इफ इट इज अ केस ऑफ, देखो एक सीधी सी बात है, 2 letters, 2 envelopes, ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल ही होना है। 2 letters, 2 envelopes, it is 2 factorial। 2 letters in 2 envelopes में up to 2 factorial आएगा, it is going to be 2 factorial upon 2 factorial, that is 1। 3 letters, 3 envelopes, it is 3 factorial there up to this 1 by 2 minus 1 by 3। So fine, 3 minus 2 that is 1, 1 by 3 it is going to be, ये टर्म कैंसिल हुआ, 3 factorial
3 लेटर्स 3 इनवेलप्स के केस में एक जनरल रिवीजन भी करवा रहा हूं मैं आपका 1/2 minus 1/3. So it will become 3 minus 2, that is 1. ठीक है ना? 1/2, sorry, it is 6 there. 1/2 minus 1/6. Just calculate that. 6 minus 2, 4/12. 2 ways are there. Likewise, 4 letters, 4 envelopes. 4 letters, 4 envelopes. Up to this. और हमने तो आपको बेसिक मेथड से अप्रोच करने बताया है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे. 4 letters, 4 envelopes. Number of ways in which derangement can be done 9. 5 letters, 5 envelopes. Number of derangements 5 letters में up to this terms. Basic approach is already there. 44. 6 letters, 6 envelopes. हमने आपको सजेस्ट किया, इतना तो याद रखिएगा. 5 in 5, 44, right? 4 in 4, derangement 9, and 6 in 6, derangement 265. ठीक, ये रिजल्ट से जो तैयार होना चाहिए काफी बेनिफिशियल रहेगा. नाउ वी कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. इट सेज यहाँ पे 6 लेटर्स का 6 एनवेलप में डिरेंजमेंट नहीं है. 6 लेटर्स एंड 6 एनवेलप जरूर है. 1 2 3 4 5 and 6. It says card 1 is always placed in envelope number 2. Card 1 को हमेशा envelope number 2 में रखना है. Let's say this is envelope 1 2 3 4 5 6. Card 1 को card envelope number 2 में रखना है आपको. तो card 1 has to be kept in envelope number 2. Card 1 तो इधर फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया. कार्ड 1 is to be kept in envelope number 2. In how many ways remaining can be arranged? यही पूछा गया आपसे. कार्ड 1 is always placed in envelope number 2. Number of ways in which it can be done. डिरेंजमेंट करना, एक भी लेटर सही एनवेलप में नहीं जाना. देखिए हम इसको 2 केसेस में बना के करते हैं, ज्यादा बेहतर होगा. देखो कार्ड 1 को कार्ड 2 एनवेलप नंबर 2 में रखा, तो हम एक काम करते हैं. एनवेलप जो अलग अलग केसेस हैं, कार्ड 1 एनवेलप 2 फिक्स एंड कार्ड 2 एनवेलप 1 फिक्स. ये एनवेलप से और ये कार्ड से. ये एक फिक्स कर दी हमने पोजीशन. 1 in 2 हमने कहा 2 in 1, राइट. एंड रिमेनिंग 4 cards, 4 envelopes and derangement, or just now I had told you 4 cards and 4 envelopes में derangement is done. Formula is there up to this, but 4 cards का 9 ways are there, right? आपको याद रखना है ये. दैट इज केस 1. और एक और केस बना लेते हैं, और वो केस ये कि कार्ड 1 को तो हमने कार्ड एनवेलप नंबर 2 में रखा, और रिमेनिंग जो 5 कार्ड्स हैं, रिमेनिंग जो 5 कार्ड्स हैं उन सबका डिरेंजमेंट कर दिया. यहां पे हमने 2 केसेस बना लिए. एक ये था कि कार्ड 1 एनवेलप 2 में है, तो कार्ड 2 एनवेलप 1 में एक केस फिक्स किया और ये कैलकुलेशन किया. कार्ड 1 एनवेलप 2 ये तो ऑलरेडी रहेगा, ये फिक्स रहेगा, और रिमेनिंग 5 कार्ड्स का डिरेंजमेंट. फॉर्मूला इज देयर. अप टू दिस यू आर गोइंग टू टेक, दैट इज 44 ways. There should not be any need to calculate that. ये कैलकुलेट करने की जरूरत होना भी नहीं चाहिए आप लोगों को. याद है आपको, याद रखिएगा. 44 + 9 53. दैट्स नथिंग बट द फाइनल रिजल्ट. ये फाइनल रिजल्ट होगा. केस बना लिया हमने, 2 केसेस बना के सेपरेटली सॉल्व कर दिया उसको. क्वेश्चन तो डिरेंजमेंट का ही था, लेकिन यहाँ चेंज था कि भाई कार्ड 1 की पोजीशन कार्ड एनवेलप 2 में फिक्स है.